Hello everyone. In this video, we will learn all the concepts of exercise 1.3 of sets. So first of all, we will learn the term subset. What is the meaning of subset? Let's try to understand. A set A is said to be a subset of a set B if every element of set A is also an element of set B. A is a subset of B if A is an element of set A, implies that A is also an element of set B. This is the condition of a set being a subset of another set. A सेट बी सेट का सबसेट कब होगा? जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी इंक्लूड होंगे. अगर सेट बी के अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट्स आते हैं, इट मीन्स सेट ए सेट बी का सबसेट है. ये बात अच्छी तरीके से माइंड में बिठाना. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक सेट ए. सपोज द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज 1, 2, 3 and let the elements of set B is 1, 2, 3, 4. It means all the elements of set A are also the elements of set B. Set A के सारे elements set B के भी elements हैं. It means set A is a subset of set B. Okay, so this is the condition of being a subset of another set. If A is not a subset of B, if A is not a subset of B, we write A is not a subset of B using this symbol. A is a subset of B and B is a subset of A if and only if A is equal to B. It means A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है. ये केवल तभी पॉसिबल है जब सेट A और सेट B दोनों इक्वल सेट्स हो. अगर दोनों इक्वल सेट्स हैं तभी सेट A सेट B का सबसेट होगा और सेट B सेट A का सबसेट होगा. अगर दोनों सेट इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन भी लागू नहीं होगी. इस कंडीशन को भी अप्लाई नहीं किया जा सकता. रिमेंबर, कुछ बातें याद रखिए. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट अपने खुद का सबसेट है. सपोज हम सेट ए लेते हैं तो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. अगर हम कोई सेट बी लेते हैं देन सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट बी. इट मीन्स एवरी सेट is a subset of itself. Every set is a subset of itself. Second point, phi. And what is phi? Empty set is represented by the symbol phi, or empty set is also represented by this blank braces. So empty set, this phi means empty set. Phi is a subset of every set. It means empty set is a subset of every set. Remember, these two things are very important and you have to keep these two things in your mind while you are solving the questions. Every set is a subset of itself and empty set is a subset of every set. Okay. Some examples of subsets are Q. Q means Q is a set of rational numbers. Rational number is a subset of real number. Q is a set of rational numbers. R is a set of real numbers. W is a set of whole numbers. Z is a set of integers. N is a set of natural numbers. And you know that ZQ. So we can say that Q is a subset of R, W is a subset of Z, N is a subset of W, Z is a subset of Q. Proper subset and superset. What are proper subsets and what are supersets? Let's try to understand. If
A is a subset of B, if A is a subset of B and A is not equal to B, if A is a subset of B and A is not equal to B, here take the example, set A is, elements of set A are 1, 2, 3 and the elements of set B are 1, 2, 3 and 4. It means set A is not equal to set B, but set A is a subset of set B. So this condition is applied in these examples. If A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B. So here A is a proper subset of B and B is called superset of A, and B is called superset of A. So this set B is superset of set A. Have you understood? For example, this is same example. Here set A and the elements of set A is 1, 2, 3 and this is set B. The elements of set B are 1, 2, 3, 4. Then A is a subset of B. Why A is a subset of B? Because all the elements of set A are also the elements of set B. That's why set A is a subset of set B. But we can see that A is not equal to and A is not equal to B. That's why we can say that set A is proper subset of B and set B is the superset of set A. Now I think you have understood these two terms, proper subset and superset. Subsets of a set of real numbers. Now try to understand these examples. Set of natural number 1, 2, 3 dot dot. These are the set. Natural number is here represented by roster form, and set of integers, suppose dot dot dot, because negative numbers, for negative numbers negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2 dot dot dot. This is the roster form of set of integers. Set of rational numbers, the set of all x such that x is equal to p by q. P and q belong to set of integers and q not equal to 0. This condition is of rational number. T, what is T? T is the set of irrational numbers. Irrational numbers, the set of all x such that x belongs to set of real number and x does not belong to set of rational numbers. So this condition is for irrational numbers. So this is the irrational number. This is the set of irrational number in set builder form. Relations among these subsets. अभी जो हमने सबसेट्स पढ़े, ये सारे एग्जाम्पल्स लिए जो हमने, इनमें कुछ एक रिलेशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर. Natural number, set of natural number is a subset of set of integers, and set of integer is a subset of set of rational numbers. Set of rational numbers is a subset of set of real numbers. Set of irrational number is a subset of set of real numbers, and set of natural number is not subset of set of irrational number. So this is the relation. Now try to understand the term power set. What is power set? Let A is a set and the elements of set A are 1, 2, 3. These are the elements of set A. We have to find all the subsets of set A. Now we know that any set which has any element of a given set
इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। ये बात हम जानते हैं कि एनी सेट, कोई भी सेट विच हैज द एलिमेंट, विच हैज एनी एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट, कोई सेट जिसके पास एक गिवन सेट का कोई एलिमेंट हो इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। इस बात को मैं ऐसे समझाता हूं। सपोज कीजिए गिवन सेट आपके पास ए है, ए आपके पास गिवन सेट है और इस ए के एलिमेंट है 1 2 4 6। ये सेट ए के एलिमेंट है। अब सेट ए का कोई भी एलिमेंट मैं ले लेता हूं और उस एलिमेंट से मैंने एक सेट बना दिया। मान लीजिए ये सेट बी है, या मैं कोई दूसरा एलिमेंट 2 इसका उठा लेता हूं, केवल एक एलिमेंट वाला सेट है ये सेट मान लीजिए सेट सी है। या मैंने इसके 2 एलिमेंट उठा लिए 1 और 2 और इससे एक और सेट बना दिया। मान लीजिए ये सेट आपका ये सेट डी है। तो यहाँ पे मैंने 3 एक्स्ट्रा सेट्स ले लिए, बी सी और डी। सेट बी का एलिमेंट है 1, सेट सी का एलिमेंट है 2, सेट डी का एलिमेंट है 1 2। अब आप देख रहे हो और भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 1 2 तो ले लिया मैंने, 1 2 4 भी ले सकते हो, 1 2 4 और 6 पूरा भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपने सेट्स एक एलिमेंट ले लिए इसमें से चुन के और उनको अलग अलग सेट बना दिया। तो देखिए सेट बी का जो एलिमेंट है 1, वो एलिमेंट सेट ए का भी है। तो सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो बी क्या हो गया, बी सबसेट का निशान लगाएंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट हो गया। वैसे ही सी का एलिमेंट है 2 और 2 एलिमेंट सेट ए का भी है, तो सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। इसी टाइप से सेट डी आप देख रहे हो, सेट डी के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 1 और 2 सेट डी के एलिमेंट्स हैं और 1 और 2 सेट ए के भी एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स सेट डी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि अगर कोई गिवन सेट है, उस गिवन सेट का कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट के पास है तो वो सेट क्या होगा, वो सेट उस गिवन सेट का सबसेट होगा। लेकिन एक और कंडीशन है, वो याद रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा उसको माइंड में याद रखना कि मान लीजिए आपके पास एक गिवन सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6 और कोई और आपके पास गिवन सेट है, मान लीजिए सेट ई है आपके पास और सेट ई के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो आप देख रहे हो सेट ई का एलिमेंट 1 और सेट ए में भी 1 एलिमेंट है, सेट ई का एलिमेंट 2, सेट ए में भी 2 एलिमेंट है। बट सेट ई में एक एलिमेंट आया 3 और वो 3 एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है। इन दैट कंडीशन सेट ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, यहाँ पे मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि वी नो दैट एनी सेट which has any element of a given set is a subset of the given set। दूसरी कंडीशन अभी हमने पढ़ा था जब हम सबसेट्स को पढ़ रहे थे कि we know that phi is called empty set, phi is a subset of every set। phi क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। and we also know that every set is a subset of itself। हर सेट खुद का सबसेट होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये बातें हमने अभी पढ़ी जब हम सबसेट्स को समझ रहे थे। देखिए देयरफॉर द सबसेट्स ऑफ सेट ए इस, अब इन बातों को हम पढ़ चुके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस सेट ए के सारे सबसेट्स हम बता सकते हैं। तो द सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, सेट ए के जो सबसेट्स होंगे फाई होगा। क्यों, क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा, इसका हर एक एलिमेंट का अगर सेट बनेगा वो भी सेट ए का सबसेट होगा। तो अगर हम एलिमेंट 1 को लेके एक नया सेट बना दें तो वो सेट ए का सबसेट है। तो ऐसा सेट जिसका एक ही एलिमेंट है 1, वो भी क्या है, सेट ए का सबसेट है। या कोई और एलिमेंट जिसमें नहीं, कोई और
सेट जिसका एक ही एलिमेंट है 2 और 2 एलिमेंट ए का भी है, तो ये वाला सेट भी सेट ए का सबसेट होगा। अब कोई और सेट हम लेते हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट है लेकिन वो एलिमेंट ए में भी आ रहा है, तो ये सेट जिसका एलिमेंट है 3, ये सेट भी सेट ए का सबसेट होगा। इसी टाइप से अगर हम सेट ए के 2 एलिमेंट से एक नया सेट बना देते हैं, 1 और 2 ले लेते हैं हम, और ये एक नया सेट बन गया, तो ये नया सेट भी सेट ए का सबसेट होगा। अब हम इसके 1 और 2 लिया था हमने, 2 को छोड़ देते हैं, हम 1 और 3 ले लेते हैं। 1 और 3 को लेके हमने एक और सेट बनाया, तो ये सेट भी सेट ए का सबसेट होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके सारे सेट ले लेते हैं। क्यों लेते हैं सारे? क्योंकि हमने पढ़ा था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये सेट हम पूरा ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 सारे एलिमेंट आ गए। तो यानी हमने सेट ए को ही ले लिया। सेट ए हो गया 1 2 3 और 2 3 भी लेना है जो अभी मैंने बताया नहीं शायद। तो सारे एलिमेंट, हर एलिमेंट को लेना है। जैसे 1 2 ले लिया, फिर 1 3 ले लिया, फिर 2 1 लो या 1 2 लो, एक ही बात है। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर इममटेरियल होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए 1 2 लो या 2 1 लो वो एक ही सेट माना जाएगा। तो 1 2 ले लिया फिर आपने, उसके बाद 1 3 ले लिया। अब आप क्या करोगे, 2 को लेते हो, 2 3 ले लो, 2 3 एक नया सेट, फिर तीनों को यानी पूरे सेट को ले लो 1 2 3। इस तरीके से आप चूज़ करोगे। तो 1 2 3 यानी हमने सेट ए को ही ले लिया 1 2 3 को, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये सारे जो हमें गेट हो गए, ये क्या हैं, सेट ए के सबसेट्स हैं। ये सेट ए के सबसेट्स हैं। तो सेट ए के कितने सबसेट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हो गए सेट ए के। 8 सबसेट्स हो गए। अब देखो ये 8 सबसेट्स हैं। आपको अगर ये पता लगाना हो कि जितने भी सबसेट्स आपने निकाले किसी सेट के, वो सही निकले, यानी जितने निकलने चाहिए थे उतने निकले या नहीं निकले, तो आप क्या करोगे, जो सेट आपको गिवन है उसके एलिमेंट्स काउंट कर लो। 1 2 3 टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। तो कितने सबसेट्स बनेंगे सेट ए के, तो 2 की पावर, जो भी इतने एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर हो जाएगी। 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 के इक्वल सबसेट्स बनने चाहिए सेट ए के। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 सबसेट्स बनने चाहिए, तो 8 सबसेट्स यहाँ पे बनते हैं। तो टोटल सबसेट्स 8 बने। अब किसी सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन, एक सेट हमको गिवन है, उस सेट के हम सारे सबसेट्स निकाल लें, उन सारे सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट कहलाता है उस सेट का। तो पावर सेट ऑफ सेट ए, मान लीजिए कोई हमने सेट ए ले लिया, या कोई भी सेट ले सकते हो, बी सी, यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ। पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। पावर सेट ऑफ सेट ए, सेट ए का पावर सेट क्या होगा, सेट ए के सारे सबसेट्स सेट ए का पावर सेट होगा। अब देखिए पावर सेट की डेफिनेशन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, कोई गिवन सेट है, उस गिवन सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन उस गिवन सेट का पावर सेट कहलाएगा। इन पावर सेट, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इन पावर सेट एवरी एलिमेंट इज अ सेट। पावर सेट के अंदर जो पावर सेट आप लिखोगे, उस पावर सेट के अंदर हर एलिमेंट एक सेट है। हर एलिमेंट एक एलिमेंट है पावर सेट का, बट वो एलिमेंट अपने आप में इटसेल्फ में एक सेट होगा। देन पावर सेट ऑफ सेट ए इज रिप्रेजेंटेड। अब देखिए, सपोज कीजिए, यहाँ पे आना था मुझे, सपोज वी आर गिवन अ सेट ए। मान लीजिए हमको एक सेट ए दे रखा है, जो अभी मैंने लिया था। मान लीजिए हमको एक सेट ए दे रखा है, उस सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट्स हैं। देन पावर सेट ऑफ सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो अगर हमें सेट ए का पावर सेट निकालना है,
तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल P और स्मॉल ब्रैकेट में सेट A, यानी A कैपिटल वाला। इस तरीके से हम पावर सेट ऑफ A इसको हम पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ A। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पावर सेट, ये तो हमने सारे सबसेट्स निकाल लिए, अब हम पावर सेट को कैसे लिखेंगे, सेट A का पावर सेट यानी पावर सेट ऑफ A। अब क्या, जिस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में सेट लिखते हैं तो ब्रेसेस लगाते हैं, तो पहले ब्रेसेस का यूज़ किया, फिर इसके सारे सबसेट्स लिख दिए, और ये सारे सबसेट्स पावर सेट के एलिमेंट्स हैं। 5 आ गया, 5 के बाद में 1 लिख दिया, 1 के बाद 2, ये खाली 2 नहीं लिखना, इसको एक सेट की तरह लिखना है। ये है तो अपने आप में एक सेट है, बट ये पावर सेट का एलिमेंट भी है। दोनों कंडीशन है इसकी, ये इट्स अपने आप में एक सेट है, बट ये पावर सेट का एलिमेंट है। अपने आप में ये 2 एक सेट है, ये ब्रैकेट में जो है ये अपने आप में सेट है, बट पावर सेट का एलिमेंट है। इसी टाइप से 3 ले लिया, फिर 1 2 का एक सेट बना दिया, फिर 1 3 का एक सेट बना दिया, फिर 2 3 का एक सेट बना दिया, फिर 1 2 3 यानी पूरा सेट एक खुद ले लिया। अब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके एलिमेंट्स हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स सेट ए में कितने थे, 3, तो 2 की पावर 3 इतने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के। तो पावर सेट्स के यहाँ पे 8 एलिमेंट्स होंगे। इसको मैं फॉर्मूले में भी डिफाइन कर रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक सेट आपको गिवन है तो उस सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे वो बात, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इफ ए, यहाँ पे ए है, ये सेट ए है, इफ सेट ए is a set with cardinal number of A. Here this is called cardinal number of A, and cardinal number of A means number of elements of set A. तो number of elements of set A को क्या मान रहे हो, M मान रहे हो आप। आपने मान लिया कि cardinal number of set A यानी number of elements of set A कितना है, M है। Then cardinal number of power set या फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। तो कॉर्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा, 2 की पावर कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यानी 2 की पावर m हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने पावर सेट को समझा। अब समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, सेट n। सेट n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कांट बी सेड। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर को नहीं बताया जा सकता। नेचुरल नंबर में सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 आगे चलती रहती है काउंटिंग। इस तरीके से ये नेचुरल नंबर का सेट है। मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है। इस नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर्स भी होते हैं। प्राइम नंबर का सेट P है। नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर्स भी होते हैं। इवन नंबर का सेट E है। नेचुरल नंबर्स के अंदर ऑड नंबर भी पाए जाते हैं। पॉजिटिव ऑड नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है। तो नेचुरल नंबर में पॉजिटिव ऑड नंबर्स भी पाए जाते हैं। पॉजिटिव ऑड नंबर का सेट मान लीजिए आपके पास O है। तो ये P, सेट P क्या है, सेट P आपका सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिखे हुए हैं। ये सेट P, E और O। तो सेट P देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। सेट P सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ओके, एंड सेट E क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। यहाँ पे पॉजिटिव इवन क्यों कहना पड़ा, बिकॉज यू नो दैट जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर। जीरो भी एक इवन नंबर है। जीरो इवन है, बट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे खाली इवन नंबर कहते तो हो सकता था उसमें जीरो भी इंक्लूड होता। तो बात यहाँ पे जीरो को इंक्लूड करने की नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में जीरो नहीं आता, इसलिए पॉजिटिव इवन नंबर लिखना जरूरी था। तो देखिए यहाँ पे इवन नंबर का सेट है।
फिर ऑड नंबर का सेट, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट set of all y such that y is a positive odd number, y पॉजिटिव ऑड नंबर है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर के सेट में प्राइम नंबर्स का सेट भी इंक्लूड है, नेचुरल नंबर के सेट में इवन नंबर का सेट भी इंक्लूड है, नेचुरल नंबर के सेट में ऑड नंबर का सेट भी इंक्लूड है। इट मीन्स ये नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट हो गया इन, और ये जो सेट P हो गया, सेट E हो गया और सेट O हो गया, ये इसके सबसेट्स हो गए। तो हियर N इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट्स PEO। PEO के ये यूनिवर्सल सेट है और PEO ये क्या है, सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट सेट N। यूनिवर्सल सेट N है, सेट N के सारे ये सबसेट्स हैं, PEO ये सबसेट्स हैं सेट N के। देखिए ये जो यूनिवर्सल सेट है ये वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वेन डायग्राम में अधिक इसका यूज है। तो इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज जनरली शोन बाय अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से वेन डायग्राम में रेक्टेंगल के द्वारा किसको दर्शाया जाता है, यूनिवर्सल सेट को दर्शाया जाता है। तो ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट U है। ओके, एंड ऑल द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। और यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सबसेट्स सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ तो मैंने एक ही सर्कल लिया, इसके अंदर 1 2 3 जितने भी सर्कल्स आप जितने भी सबसेट्स सर्कल की फॉर्म में लगाना चाहो लगा सकते हो। तो ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जितने भी एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल में दिख रहे हैं ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट को रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। और सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U और सेट ए यूनिवर्सल सेट U का सबसेट है। और सेट ए के एलिमेंट्स हो गए 2 4 6 8 और 10। तो ये सेट ए रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन करूँगा। इंटरवल्स के बारे में आपको जो जानकारी है नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और फ़ोन हीट हो जाता है और गर्मी भी बहुत है रूम में, इस कारण से थोड़ा इतना लेंथी वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब the channel and press the bell icon to receive the notifications of my next video. Thank you. Thanks a lot for watching this video.